I got time, right, during my office as well, even if I got half an hour, 1 hour, right, so I used to practice. तो मैं अनी सर को कहता था कि नहीं, मेरे को एक शेड्यूल चाहिए, मेरे हिसाब से शेड्यूल चाहिए, मेरा ये स्ट्रांग है, ये वीक है, इस हिसाब से आप मुझे शेड्यूल दीजिए। तो ये काफी बार मेरे बात को कैटर भी किया जाता था। द सेकंड टाइम आई अंडरस्टूड कि कैट इज नॉट अ वेरी थियोरेटिकल एग्जाम, इट इज अ वेरी प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम। एक मोटिवेशन मेरे लिए, एक तो डू और डाई वाला सिचुएशन था कि मेरे को करना ही है किसी भी हाल में, दैट वाज माय मोटिवेशन। सो वीआरसी के लिए यही स्ट्रैटेजी थी कि कितना अच्छे से वो रीडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ पाए मेरी, कि मैं समझ पाऊँ उस आरसी को अच्छे से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एंड इट वाज आल्सो इमोशनल एज वेल, बिकॉज आई मीन काफी मेहनत के बाद ये चीज हुआ, काफी सेटबैक्स भी आए, काफी मेहनत लगी इसमें। ओके, बिकॉज मैंने नहीं, मतलब आई वाज एमिंग फॉर आईएम्स, बट देन आई डिडंट नो कि मेरा आईआईटी में भी हो सकता है। किसी का फाइनल लो आ जाए और मॉक में हाई आ जाए तो उसको कोई पूछेगा थोड़ी। First of all, a huge congratulations on securing your IIT Bombay convert. थैंक यू सो मच स्नेहा। Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? Basically, your profile. Perfect. So my profile was that I did my schooling first from Delhi, and then I moved to Ranchi, where I completed my class 12th. So after that, I moved to Bhubaneswar, KIIT University, that is in Bhubaneswar, from where I completed my bachelor's in computer science and engineering. And post that, I have around 3 years of work experience, which is distributed in a fintech consulting firm, a boutique consulting firm, and a big four consulting firm from where I was working till approximately 2.5 years right now. So that is pretty much my profile. And I did some NGO work as well in these past, I guess, 1.5 years. So you were working while preparing for CAT this year, right? Or you took a break and then solely focused on No, the I was preparation? working. I was working. Okay, so I would love to know how you balance and stay consistent with your studies, especially since you were juggling both with work and CAT preparation. So Correct, correct. And that's a valid question as well. So, the issue was, right, that मेरे साथ या कई लोगों के साथ ये issue होगा to manage the time। जो मैंने पहले गलती करी थी इसकी, आई यूज टू सेटअप कि मैं सुबह इतने देर पढ़ूंगा, दिन में इतने दिन पढ़ूंगा, फिर किसी तरीके से मैनेज करूंगा। दैट डिड नॉट वर्क, एटलीस्ट फॉर मी इन द इनिशियल डेज। वाई? बिकॉज द टाइमिंग्स फॉर द वर्क इज, काम कभी भी आ सकता है, राइट? सो व्हाट आई डिड दैट आई केप्ट कि आई हैव टू स्टडी फॉर सम आवर्स अ पर्टिकुलर डे, एंड मेरे को ये चीजें कंप्लीट करनी है। And then whenever I got time, right, during my office as well, even if I got half an hour, 1 hour, right, so I used to practice. And it's very important to prioritize as well, right? So for example, I knew that I have to give CAT and I need to score very good in CAT, right? So I prioritize CAT over something. I did not, ऐसा नहीं था कि मैंने अपने ऑफिस में I compromise there, but prioritization is very important. So that I would say, right, to all the fellow aspirants, that कि टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि वो प्रायोरिटाइजेशन हो सके। from which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted so far? Right. So I got call from IIT Bombay, SJM SOM IIT Bombay, DMS IIT Delhi, and these two IITs that were to which I applied, and I got calls from CAP, SPJN. I got profile based call, and the score come profile based as well. So for I got from BM and IM both, and I got call from XLRI from the HR, and I got call from TIS as well. And I would say that pretty much a couple of more IIMs, like IIM Visakhapatnam and the standalone IIMs, right? IIM Raipur and all. From these colleges, I got calls, and then I was able to confirm MDI also. I got call, and I was able to convert MDI, and I was able to convert all the CAP IIMs, and yeah, and IIM Visakhapatnam, Raipur, and all the standalone IIMs also I was able to convert. And IIT Delhi also, I was in the wait list, but I converted that as well. Okay, so how did you come to know about EliteScale? Did someone recommend you or you did your own kind of research and found out about EliteScale? What's the story? So I pretty much followed the whole CAT ecosystem, and I got to know that Elites Grid is like a very good institute, and so I took the crash course at Elites Grid. So my whole plan was to study, and then I was trying to find a very good institute which can provide me a very detailed course structure for a crash course perspective, right? जहाँ पे crash course के perspective से एक अच्छा routine मिले, एक अच्छे long classes मिले, and वो crash course वाले तरीके से वो working professional को भी काफी cater कर पाए। So वो पूरे चीज को नजरिए में रखते हुए मेरे लिए एक एलीट ग्रेड के बारे में मैंने काफी अच्छा सुना था, एंड फाइनली इट पेड ऑफ एज वेल। Which batch did you enroll in and when did your classes begin in EliteScale? आई एनरोल्ड फॉर द क्रैश कोर्स बैच। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर कि उसका कुछ स्पेशल नाम था, बट अराउंड आई गेस सितंबर, अराउंड द कोर्स स्टार्टेड फॉर मी। सितंबर, अगस्त और सितंबर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट अगस्त या सितंबर अराउंड ये स्टार्ट हुआ था। बट येस, सिंस द टाइम कम था, सो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग दैट वो काफी रिगोरसली मैनेज किया गया था।
सो एंड एक और काफी अच्छी चीज थी कि आई ऑफन यूज टू गिव माई ओन सजेशंस एज वेल, एंड वो सजेशंस माना भी जाता था मेरे। तो मैं अनी सर को कहता था कि नहीं, मेरे को एक शेड्यूल चाहिए, मेरे हिसाब से शेड्यूल चाहिए, मेरा ये स्ट्रांग है, ये वीक है, इस हिसाब से मुझे शेड्यूल दीजिए। तो ये काफी बार मेरे बात को केटर भी किया जाता था। तो दैट वाज रियली नाइस, एंड दैट्स व्हेन द क्लासेस एंड ऑल स्टार्टेड। Okay, was this the first attempt or you appeared previous year as well? This was my second attempt. So I gave CAT 23 as well. So due to some technical issues, मेरे एक section में I did not get good marks. So the overall went down. So I plan to give CAT again for 24. Okay. What is your percentile this year? This year my percentile is 99.22. Can you tell me what specific changes did you make in your preparation that helped you to improve your score? So last year I focused a lot on theory, right? And Okay. theory and मैं इस चीज को पढ़ने में क्वांट में खत्म करना, एलआरडी में खत्म करना, वीआरसी में भी मतलब चीजें पढ़ना. So that was one mistake that I did कि the second time I understood that CAT is not a very theoretical exam. It is a very practice oriented exam, right? We need to understand. I mean कि यहाँ पे theory does not play a very big role. यहाँ पे practice plays a very big role, right? So वो कुछ changes लाए मैंने कि इस साल mocks के analysis पे I focused a lot, एंड प्रैक्टिस पे आई टोटली फोकस, राइट? बिकॉज एक तरीके से ये भी था कि मेरा काफी थ्योरी वो पिछले साल में कंप्लीट हो चुका था, तो इस साल मैंने सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस किया था, एंड जो थ्योरी में पढ़ता था ताकि मेरा उससे टच ना छूटे, राइट? कि जैसे क्वांट में मेरे फॉर्मूला से टच ना छूटे या वो सब ना हो। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जैसे इट वाज लाइक मैं हर दिन एटलीस्ट 3 से 4 आरसी एटलीस्ट प्रैक्टिस करता था अलग से, एंड आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स, दिस फॉर वीआरसी आई एम टेलिंग, राइट? And at least either one sectional, or if I'm giving one mock then I'm not giving the sectional, right? So उस basis पे करता था, but I made sure कि मैं अगर 40 मिनट का मॉक दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं उसमें कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे में उसको एनालाइज करूँ, राइट? कि कहाँ मेरी गलती थी। एंड आई नो दैट एवरीवन इन द कैट इकोसिस्टम सेज कि मॉक्स एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक दिस इज ओनली द मंत्रा टू क्रैक कैट ऑल्सो, कि मॉक्स एनालाइज करने से ही मार्क्स आते भी हैं, विच आई एंड ऑल्सो अंडरस्टूड। बिकॉज आपको ये बहुत समझना जरूरी है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके से आई अंडरस्टूड कि एंड इस साल 24 के कैट के लिए लाइक आई फोकस्ड अ लॉट ऑन वीआरसी एंड एलआरडीआई एज वेल। सो उस समय तक ये हो चुका था कि मैं इन दोनों में बहुत अच्छा था, बट मेरा क्वांट में जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था। तो उस समय जब मैंने क्रैश कोर्स लिया, सो आई यूज टू टेल फैकल्टी कि ये फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम में या XYZ, मैं पर्टिकुलर नेम नहीं कर रहा हूँ, बट किसी किसी जगह में मान लीजिए मुझे अभी दिक्कत हो रही है, तो कैन यू मेक अ शेड्यूल इन दैट वे जो मुझे हेल्प कर पाए उसलिए। तो उससे क्या था कि जिस चीज में मैं बहुत ज्यादा फोकस पर्सनली नहीं कर पाया था, मैं वो चाहता था कि वो मुझे फैकल्टीज करा के देते हैं, और वो चीज मेरे लिए काम आया भी। तो ओवरऑल ऐसा हो गया ना कि फाइनली आई वाज वेल इक्विप्ड विद ऑल द सेक्शंस। आई वुड से कि स्ट्रैटेजी फॉर कैट इन माय ओपिनियन इज ओनली प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, आप पढ़िए थ्योरी, एंड देन उस पर सिर्फ क्वेश्चंस बनाइए। एंड आई थिंक एलिट ग्रेड में वो लॉन्ग सेशंस भी होते थे, आई गेस 8-9 घंटे के, वो भी काफी काम आते थे। कैट की जर्नी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है, स्पेशली जब मॉक टेस्ट का फेज आता है, क्योंकि स्कोर तो बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो उस टाइम पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे, क्योंकि पहले ही तो आप बहुत लेट ज्वाइन किए, तो एक बैक ऑफ द माइंड वो भी रहता है कि इतना लेट ज्वाइन किया, पता नहीं हो पाएगा भी या नहीं, अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी तो लास्ट मोमेंट है। तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? मोटिवेटेड इसलिए रखता था बिकॉज सो इट माइट बी अ फनी थिंग ऑल्सो कि मेरा ऑलरेडी 3 साल वर्क हो गया था, ठीक है? सो आई हैड टू डू कैट इन एनी वे पॉसिबल। सो एक मोटिवेशन मेरे लिए, एक तो डू और डाई वाला सिचुएशन था कि मेरे को करना ही है किसी भी हाल में, दैट वाज माय मोटिवेशन। दूसरा ये भी था कि सिंस मैं ऑलरेडी, ये दिस माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीवन, सिंस मैं ऑलरेडी एक बार कैट दे चुका था, ठीक है? तो मेरे को लो मॉक स्कोर से कभी ऐसा नहीं था कि आगे क्या होगा, बिकॉज आई न्यू कि लो मॉक स्कोर है तो आगे जाके एग्जाम में वो बहुत हाई भी हो सकता है। एक ये फैक्टर मेरे लिए ये कभी नहीं बना कि मतलब मैं बहुत मतलब डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ, डिप्रेस हो रहा हूँ इस चीज से। बट हाँ, अगर ऐसा कभी था कि कभी अपने आप को क्वेश्चन करने का टाइम आता था कि मतलब यार नहीं हो पा रहा है, क्या कर सकते हैं, तो आई यूज टू जस्ट थिंक कि आई मीन नहीं होगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, समथिंग बेटर। ओके, कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, वीआरसी एंड जेएलआर। सो वाज देयर एनी सेक्शन दैट यू इनिशियली फाउंड टफ देन द अदर सेक्शंस? आई वुड से कि LRDI पर्सनली फॉर मी वाज वेरी टफ, ठीक है, इनिशियली, एंड VRC also was tough for me initially. Quant was never very tough for me, though in my finals, like on the CAT day, I performed worse in Quant compared to VRC and LRDI. But Quant was always the stronger section for me, ठीक है? But VRC और LRDI मेरे लिए काफी tough था, and I think practice only made it much better. I mean, finally I was able to score 99% both LRDI and VRC.
and practice was the reason. I mean, lastly ऐसा था कि I used to like studying VRC and LRDI. तो आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू प्रैक्टिस दैट सेक्शंस, लाइक स्टेप बाय स्टेप डीआईएलआर के लिए क्या किए थे, वीआरसी के लिए क्या किए थे, एंड कॉन्स के लिए कैसे प्रैक्टिस किए थे? Hmm. So after I joined the course, right? So that was उस समय तक तो मेरे पास कम टाइम था, so I only used to practice the material Elite Suite used to provide, right? So there was a lot of वो sessions भी कराते थे, वहाँ पे भी material था, and they used to give a lot of different material as well. PPTs के form में रहता था उनके portal पे, so I used to just solve the questions, right? And different types of questions I used to practice, right? So that I mean आपका दिमाग खुलता है उस चीज से. So that was for LRDI, right? For VARC, I started the preparation much before I joining the course as well, right? Since मैं I guess May या March से I started, right? So only practice. मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता था, right? जितने एडिटोरियल्स होते थे वो पढ़ता था, and as I mentioned कि VRC के लिए आरसीज पढ़ता था 4-5 एंड सेक्शनल सॉल्व करता था. बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि मोर देन जस्ट रीडिंग, इट वॉज टू अंडरस्टैंड वॉट आई रेड, राइट? बिकॉज एक फंडा मैं समझा था कि कितना जल्दी रीड करते हैं वो मैटर नहीं करता है, कितना अच्छा रीड करते हैं वीआरसी में वो मैटर करता है, सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में हम कुछ टाइम बचा पाए. सो वीआरसी के लिए यही स्ट्रैटेजी थी कि कितना अच्छे से वो रीडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ पाए मेरी, कि मैं समझ पाऊँ उस आरसी को अच्छे से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था. सो दैट वाज फॉर वीआरसी. एंड एलआरडीआई के लिए तो आई थिंक एवरीवन वुड से कि दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज प्रैक्टिस. Okay, when you started giving full length mocks, were you score high or low initially? Initially, I would say it was mixed. I would say it was mixed. Sometimes I used to score very low, or it was either very high. Uh, ये जरूर था कि स्टार्टिंग में मेरे को एक कंसिस्टेंसी नहीं था, कभी बहुत हाई आता था, कभी बहुत लो आ जाता था. बट ये हुआ कि विद टाइम इट बिकेम कंसिस्टेंट. सो आई रिमेम्बर कि एकदम स्टार्टिंग में जैसे जिस टाइप के मुझे मार्क्स आते थे वर्सेस लास्ट में, मतलब कैट के कुछ टाइम पहले तक जैसे मार्क्स आते थे, तो कैट के कुछ टाइम पहले तक इट बिकेम वेरी कंसिस्टेंट कि मेरे को एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स आता था, एंड उतना ही मुझे कैट में आया भी. जितने मेरे को कैट 24 में मार्क्स आए उतने मेरे को मॉक्स में भी आते थे. Okay, so can you walk us through your mock test analysis strategy, या sectional wise? section wise. So starting with the first section, VARC, right? I made sure to first analyze कि, so obviously I used to not do the 4 RCs, I used to do 3 RC and then VA. ठीक है, तो one thing was to very much understand कि जो RC मैंने छोड़ा है, क्या वो सही डिसीजन था कि नहीं, कि मुझे वो आरसी छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था. एक तो वो था सबसे पहला चीज. दूसरा ये चीज था कि जो मैं गलती करता था, मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी था कि क्या मुझे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने, मेरा ऑप्टिमम नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस क्या होना चाहिए था कि जिससे मैं गलत कम करता, राइट? बिकॉज इनिशियली मुझे याद है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करता था, ठीक है, उसमें मेरे गलत भी बहुत हो जाते थे. तो देन आई फाउंड कि एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे करना था जिससे मेरे को मैक्सिमम मार्क्स आ पाए. वो एक जरूर था. एंड ये था कि मैं वी आर जो आरसी समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो ऑथर बोलना चाह रहे हैं, ठीक है. वो बहुत जरूरी था मेरे लिए समझने के लिए, एंड वीआरसी में मेरे को ये स्ट्रैटेजी काफी काम आया. बाकी पैरा जंबल्स एंड जो वीए वाला पार्ट होता है उसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं ये स्टार्टिंग में समझ गया था कि किस टाइप के क्वेश्चन मुझे करने हैं. कि जैसे पैरा जंबल्स मैं कर पाता था, ठीक है, पैरा वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो होता है वो भी मैं कर पाता था. बट पैरा समरी मेरे लिए काफी दिक्कत था, वो मैं नहीं कर पाता था. तो देन आई मेड श्योर कि उस तरीके से मैंने एनालाइज एनालाइज करके समझा कि वो मेरे लिए नहीं है, तो देन मैंने उसको छोड़ा. एलआरडीआई में अगर हम आए तो एलआरडीआई में भी ऑल्सो जो हनी सर भी कहते थे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हनी एंड गौरव सर भी कहते थे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि एक क्वेश्चन 3 ही मार्क्स देगा, मतलब वो हार्ड क्वेश्चन भी 3 मार्क्स देगा, इजी क्वेश्चन भी 3 मार्क्स देगा. सो सही सेट चूज किया है कि नहीं मैंने, एंड जो मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है उसको मैंने चूज किया है कि नहीं. सो सेट सिलेक्शन एक सबसे बड़ा वो था. एंड वी आर एंड एलआरडीआई में आई वुड से कि एनालिसिस स्ट्रैटेजी यही थी कि जो चारों सेट है मैं उसको बनाऊं खुद से, आंसर्स ना देखूं, खुद से बनाऊं. उससे ये होता है कि आपको आगे के सेट्स में भी काफी समझ में आ जाता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है. Yeah. सो दैट वाज माय एलआरडीआई स्ट्रैटेजी. क्वांट में इट वाज अगेन कि मैंने कितना जल्दी कर पाया है कि इजी क्वेश्चंस में ऐसा ना हो कि मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ. एंड कौन सा स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट था कि मुझे पहले ही सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, या मुझे सर्टेन क्वेश्चंस को पहले ढूंढना है देन करना है. उस तरीके से मैंने समझने की कोशिश की. एंड ऑल्सो कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मेरे लिए सही नहीं हो रहे हैं, देन आई मेक श्योर कि मैं एक बार ज्योमेट्री का थ्योरी रिवाइज करूँ, उस थ्योरी को करके फिर मैं एक बार सेक्शनल दे लूँ, ठीक है, या टॉपिक टेस्ट दे लूँ, एंड देन फिर मैं मॉक में बैठूँ. मतलब जो चीज मैं गलत कर रहा हूँ उसको मैं अपना स्ट्रांग बनाऊं, देन अगेन मॉक में बैठूं. मतलब मैं सिर्फ मॉक्स दूं ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, मॉक्स में मैं कितना बेटर परफॉर्म कर पाऊं ये मेरी स्ट्रैटेजी.
आप कैट के पहले 1 महीना पहले या फिर 15 डेज पहले रिवाइज कैसे करते थे? क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, फिर डीएलआर का भी इतने सारे सेट्स होते हैं। यू नीड टू नो योर जॉनर ना, कि कौन से टाइप का सेट, नंबर सेट्स आपको सूट कर रहे हैं, कि डीआई आपको सूट कर रहा है, ऐसा। और फिर वीआरसी का स्ट्रेटेजीज भी याद रखना पड़ता है कि क्या स्ट्रेटेजी बनाए हैं, या फिर ऑप्शन सिलेक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये सब आप रिवाइज करते कैसे थे, या फिर प्रैक्टिस कैसे करते थे लास्ट के दिनों? तो वीआरसी तो नॉर्मल मॉक प्रैक्टिसेस से हो जाता था, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कुछ हम्म। अलग से करना था, बिकॉज दैट वाज प्लेन प्रैक्टिस। एलआरडीआई एंड क्वांट में बोर्ड से कि लास्ट में तो ईजी के ही काफी सेशंस होते थे, तो उसी के थ्रू प्रैक्टिस हो भी जाती थी, एंड काफी फॉर्मूला रिविजन्स भी होता था, विच वाज एक्चुअली ट्रू एंड वेरी नाइस एज वेल। कि एंड हाँ, ये जरूर था कि लास्ट में जैसे क्वांट्स का क्या रिवीजन करना था, तो मैंने अपने बहुत सारे स्मॉल नोट्स बना लिए थे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है लास्ट में, किस तरीके से पढ़ना है, और मैंने अपना ही एक फॉर्मूला बुक बना लिया था, एक एक्सेल शीट बना लिया था। सो वहां से मेरा उसके बाद ये था कि मैं यहीं से पढ़ूंगा, जो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसमें मैंने बिल्ड किया है, मैं लास्ट के टाइम पे वहीं पढ़ूंगा, कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। सो जो मेरे नोट्स है मैं उसे रिवाइज करता था, नीचे के सेशंस जो थे वही काम आ जाते थे। ओके, तो कैट के अलावा आपने कोई और एग्जाम दिया है? कैट के अलावा मैंने सिर्फ जैट दिया था इस बार। ओके, उसमें आपका कितना परसेंटाइल आया है? जैट में आई स्कोर्ड अराउंड आई वुड से 97.6, जिसमें मेरा हाईएस्ट डीएम में था 99 पॉइंट समथिंग, 99.3 आई गेस। ओके, कैट नॉमेट्स आर अ बिट डिफरेंट, सो जैट में जैसे डीएम सेक्शन होता है, तो उसके लिए पढ़ाई कैसे की? डीएम का भी मैंने कोर्स ले लिया था इजी से, तो डीएम का भी वहाँ पे काफी काम आया था। प्लस डिसीजन मेकिंग में आई वुड से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट माइंडसेट, राइट। एंड बिकॉज एक पर्टिकुलर डीएम में इट इज जस्ट प्लेन डिसीजन मेकिंग, उसका कुछ मतलब आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई मतलब किसी का अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत फ्लॉड है तो वो एक महीने में वो चीज़ चेंज भी नहीं कर सकता है, वुड से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और वो चीज़ समझे कि किस तरीके, कि सामने वाला क्या चाहता है, मतलब अगर जैट के टीचर्स ने वो क्वेश्चन सेट किया है तो दे वांट टू नो अ पर्टिकुलर आंसर, राइट। तो आप ये समझिए कि ऑथर आपसे चाह क्या रहा है, वो समझना क्या चाह रहा है, वो किस तरीके के आंसर चाह रहा है। एक बार आप अगर वो क्रैक कर लें तो फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मुझसे। ओके, एंड फॉर कॉन्स एंड वीए के लिए आप कैसे पढ़ाई की थे? जैट में आई गेस क्वांट्स वाज प्रीटी मच सेम जो कैट के लिए पढ़े थे, थोड़ा बहुत सिलेबस ऐड होता है बट वो नेग्लिजिबल इन माय ओपिनियन होता है, जो आपने ऑलरेडी कैट के लिए पढ़ा है आप उसको बिल्ड करिए। वीएआरसी में थोड़ा पढ़ना पड़ा, बिकॉज वीएआरसी का पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है वुड से जैट में, बिकॉज पोएम्स आ जाते हैं, एंड आरसीज का लेंथ भी थोड़ा मैटर करता है, उसमें चेंज हो जाता है। सो थोड़ा उसके लिए पढ़ना पड़ा, बट आई वुड से कि सिंस वो एक महीना ही बचा था तो आई फोकस मोर ऑन व्हाट द फैकल्टीज सेड किस तरीके से करना है, एंड ओके। सॉल्विंग द मॉक्स, बिकॉज वो एक महीने में फॉर मी टू चेंज माई होल प्रोसेस भी मुश्किल है, बिकॉज इट वॉज टू बिल्ड अपॉन जो मैंने ऑलरेडी किया, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। सो सिर्फ मॉक्स दिया था मैंने जैट का, आई वुड से कि 30 दिन थे, तो उसके बाद 30 दिन में मैं जितना भी कर सकता था उतने मैंने मॉक्स दिए थे, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन या हर दिन मैं देता था। एंड वही था। जैट में ये जरूर था मेरे लिए समझना कि कैट वॉज अ वेरी स्पीड फोकस्ड एग्जाम, बट जैट इज अ वेरी एक्यूरेसी फोकस्ड एग्जाम, बिकॉज जैट में वो पर सेक्शन लिमिट्स नहीं होता है। तो आप किस तरीके से अपने उसको मतलब मैक्सिमाइज कर सके, किसी के, जैसे मेरा डीएम स्ट्रांग था तो मैं पहले डीएम करके खत्म कर देता था जल्दी से, देन मैं वीआरसी पे जाता था, देन क्वांट पे जाता था। तो वो मेरा प्रोसेस था, किसी और के लिए कोई और प्रोसेस फायदा कर सकता है। Coming back to the interview stage directly, then share how you prepared for your personal interview. राइट, सो व्हेन आई कम टू द इंटरव्यू प्रोसेस, तो एसपीजेएन का इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ा था, बिकॉज उसका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है कंपेयर टू, बिकॉज उसमें ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं। एसपीजेएन में आई वाज एबल टू क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट टीआई राउंड टू द सेकंड वन, फाइनली आई वाज वेट लिस्टेड इन दैट, बट वो था इसका। अदर देन दैट बाकी उसके लिए आई मेड श्योर टू रैम्प अप एंड वर्क अ लॉट ऑन माय जनरल नॉलेज, राइट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे अपने लोकेशन के बारे में, आप कहाँ से आते हैं, अपने अराउंड भी जनरल नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से था, फिर रांची से था, फिर भुवनेश्वर गया, तो मेरे को एटलीस्ट ये 3-4 जगह के बारे में पता होना बहुत जरूरी था। तो जनरल नॉलेज इट मीन्स कि हम अपने अराउंड का जनरल नॉलेज कवर कर लें, एंड देन बेसिक जो फाइनेंस के रहता है कि आपका सेबी का चेयरमैन कौन है, ये सब चीज़ें जो बेसिक रहती हैं वो सब जानना बहुत जरूरी है। एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये चीज़ पे भी बिल्ड करूँ कि मैं कंसाइज आंसर, टू द पॉइंट आंसर सामने वाले को किस तरीके से दूं। सो कम्युनिकेशन स्किल पे तो फोकस करा ही था मैंने, और ये भी फोकस करा था कि मेरा कंटेंट डिलीवरी कैसे है, कि मैं सामने वाले को क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। सो आई फोकस्ड ऑन दैट अलॉट, सो दैट वाज मोर और लेस अबाउट मी। एंड फाइनली मैंने ये भी कई जगह किया था, मेरे को वॉट के लिए भी प्रिपेयर करना था, तो आई यूज टू राइट अ लॉट ऑफ वॉट्स, कि मैं खुद ही टॉपिक्स ले लेता था, उन टॉपिक्स पे लिखता था। कहीं एक्सटेम्पोर होना था तो खुद ही टॉपिक लेके आईने के सामने खुद ही वो चीज़ के बारे में बोलता था लॉट।
सो विद वर्क आई मीन इट वाज अ बिट टफ, आई वुड से कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, बिकॉज टिल कैट तो कैट लुक्ड वेरी टफ, बट आफ्टर कैट इंटरव्यू लुक्ड इवन मोर टफ देन कैट, आई वुड से। So how did it feel when you finally received the convert? आई मीन ऑब्वियसली फीलिंग तो अच्छा ही आया था। तो फीलिंग ऑब्वियसली अच्छा था, एंड इट वाज आल्सो इमोशनल एज वेल, बिकॉज आई मीन काफी मेहनत के बाद ये चीज हुआ, काफी सेटबैक्स भी आए, काफी मेहनत लगी इसमें। तो काफी मेहनत के बाद ये चीज आया, तो इट फेल्ट अ लॉट प्राउड एज वेल एंड गुड, एंड आल्सो प्राउड फॉर माय पेरेंट्स कि उनको भी अच्छा लगा कि आई वाज एबल टू डू ऐसा। सो फर्स्ट थॉट यही था कि आई मीन अभी तक अच्छा हो गया, एंड आगे इट मीन्स कि और अच्छा होगा। सो या आई वुड से कि मतलब मैं कोई भी कैट में मेहनत करता है, कुछ करता है, तो some way or the other वो मेहनत आई मीन इट पेज ऑफ। ओके, बिकॉज आई मैंने नहीं मतलब आई वाज एमिंग फॉर आईएम्स, बट देन आई डिडंट नो कि मेरा आईआईटी में भी हो सकता है। तो देन आई लर्नड अबाउट द कॉलेज, एंड मेरा काफी अच्छा जगह हो भी गया। What was your overall experience with Elite Grid? I would say it was a very good experience in a way कि I one thing I understand कि I mean the students need to be hardworking, but here the faculties are also a bit hardworking, right? Because ये तो था, एक फ्रेंड के साथ मैं बात कर रहा था कि 8-8 9 9 घंटे सेशन लेना इतना आसान नहीं होता है। So ये जरूर था कि हाँ, Elite's Grid was very, I mean it's a very hardworking institute, and ये था कि हाँ, the faculty was very accessible. So I mean, whenever I had issues, not even related to CAT, I mean, I did not take the interview package right from Elite's Grid. But even though I had an interview question, the faculties answered it. So it's a very nice institute. I would say कि it's a very adjusting institute as well, कि वो student के across accordingly अपने आप को adjust कर लेते हैं. Okay, so if you could give one important piece of advice to the CAT aspirant to help them improve their score, it can be any common mistake that they should avoid or something that they should consistently focus on throughout their preparation. So, what would be your suggestion? One piece of advice, and only one piece of advice, is practice. That is like, I would say, I can be wrong as well. People can say कि ये सही नहीं है, but this was out of my experience. कि can it paid off? It worked for me. Is that CAT for me is not a very theory focused exam. It is a very practice oriented exam. So आप practice करिए, and अपना consistency मत छोड़िए। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 घंटा ना पढूं, मैं एक ही घंटा पढूं, बट अब वो 1 घंटा रोज पढ़िए। रात दिन आप 1 घंटा 4 4 घंटे पढ़िए, अगले दिन कुछ मत पढ़िए, फिर आप पढ़िए। उससे बढ़िया है कि आप हर दिन पढ़िए, बी कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिस अलॉट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, एंड उतना ज्यादा आपको बेटर होगा। वन मिस्टेक दैट आई थिंक पीपल मेक इज दैट लो मॉक स्कोर से वो ये समझ लेते हैं कि कुछ नहीं होगा, बट उनको ये समझना चाहिए कि लो मॉक स्कोर आ ही इसलिए रहे ताकि आगे बेटर मॉक स्कोर आए। मतलब अदरवाइज वो लो मार्क्स स्कोर का कुछ फायदा ही नहीं है ना। आप तो दे ही एग्जाम मार्क्स देते ही इसलिए हैं कि लो मार्क्स स्कोर है। मॉक्स में हाई हाई किसी का फाइनल लो आ जाए और मॉक में हाई आ जाए तो उसको कोई पूछेगा थोड़ी। तो आपसे तो That's such a valuable advice. Your journey is a proof that with the right mindset, planning, and consistency, even the toughest goal like CAT exam can be achieved. Thank you so या much for sharing your amazing journey with us. Once again, a huge congratulations on securing a spot at IIT Bombay. Wishing you all the very best as you start this exciting new chapter. Thank you so much for joining. थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक टू यू।